Now, this is bipolar affective disorders. Before starting, let's have a look on this picture. This face is showing the mode, and this face is also showing the mode. So hope you observe the difference in the modes of both faces. And the first face on this side is sad, and that face is happy. So it gives an impression what we are going to discuss in the next 40 or 45 minutes. This is a bipolar disorder, another presentation. This face is somewhat happy in red color. If you look at green and bluish color, this face is sad. The word bipolar itself gives the meaning of the disease. Bi means two. Effective word is a psychiatric or a medical word which means mood. Okay, what is mood? Can anyone want to cooperate or intervene in between the lectures and want to? So, what is mode? What is effect or what is mode? You can write your answer in the chat box. If anyone is interested for an interactive session, just raise the hand or I can unmute the mic of that person. If anyone wants an interactive session or wants to give the answer directly. Otherwise, write down your answer in the chat box. What is mood? What do you mean by the mood? Just take your time, but write down soon. Okay, chat box. Gulshan Kumar, I already started recording, but I want to know what is mood, the state of mind at particular time. Okay. Anyone else? जरा सोचिए, बड़ा कॉमन वर्ड हमारा इस्तेमाल होता है कि आज आपका मूड सही नहीं है, तो इससे क्या मुराद है, क्या मकसद है मूड से? Okay, it's a sustained outward expression of your internal emotions. Zahra कहती हैं the feeling, okay. Ashley, state of mind or feeling, okay. तो इसको प्रॉपर थोड़ा सा हम ले जाते हैं. It is basically the outward expression of the internal emotions. These are the sustained outward expression of the internal emotions. अगर आप परेशान हैं तो आपके मूड से क्या नजर आ रहा है? आप डिप्रेस्ड हैं, मूड सैड होता है. अगर आप खुश हैं, अंदर से खुश हैं, तो मूड हैप्पी नजर आता है. तो ये दोनों जो होती हैं, ये क्या है? जो मूड आपका आउटवर्ड एक्सप्रेशन है. किसका आउटवर्ड एक्सप्रेशन है? आपके इंटरनल इमोशंस का. इट इज द सस्टेन्ड आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ योर इंटरनल इमोशंस. और मूड को ही हम मेडिकली या इन साइकियाट्री में हम लोग उसको इफेक्ट कहते हैं, इफेक्ट. तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, बेसिकली ये पार्ट है मूड डिसऑर्डर्स का. मूड डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिपोलर, एक होते हैं बाइपोलर. अब जो यूनिपोलर होते हैं उनमें क्या होता है कि एक ही प्रॉब्लम होता है, एक ही मूड डिसऑर्डर होता है, आइदर वो डिप्रेशन हो या मेनिया हो. लेकिन जब बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर है तो यहाँ पे दोनों डिसऑर्डर एक साथ होंगे, डिप्रेशन भी होगा, मेनिया भी होगा.
मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ स्टूडेंट हमने अभी ज्वाइन किया, तो बता दूं कि ये जो फेस रिकग्निशन हमने यहाँ रखी है, इसमें दो अलग अलग मोड आ रहे हैं। एक मोड सैड है तो दूसरा हैप्पी है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगले 40 to 45 मिनट्स में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर इस पिक्चर को आप गौर से देख रहे हैं तो जो रेडिश येलो है, इसमें एक हैप्पी मोड दिखाया गया है, ये मैनिक मोड है, मैनिक एपिसोड है। और सेकंड ग्रीनिश ब्लू में आपको डिप्रेसिव मोड दिखाया गया है, जो कि उसका एक और एपिसोड है इसी डिसऑर्डर का। यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर में दो एपिसोड्स हैं, मैनिक एपिसोड देन डिप्रेसिव एपिसोड। चलिए जी, इनको डिस्कस करते हैं आज। Objectives. At the end of the session, you will be able to know the classification of the bipolar affective disorders, what are the possible causes behind the bipolar affective disorder, how a bipolar patient presents, and the treatment outline. Here is the classification for the bipolar affective disorder. The bipolar affective disorders are divided into two groups. The first is bipolar disorders 1, another is bipolar disorder 2. So in bipolar disorder 1, it is characterized by the depression alternating with mania. एक ही मरीज है, एक ही मरीज के अंदर दोनों डिजीज हैं, दोनों मोड डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन दोनों एपिसोडिक हैं। पहले इसमें डिप्रेशन का एपिसोड आएगा, फिर मेनिया का एपिसोड आएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर्स 2, it is characterized by the depression alternating with the hypomania. अब ये चेंज हो गया, ऊपर क्या था, डिप्रेशन अल्टरनेटिंग विद मेनिया। 2 में क्या हो रहा है, डिप्रेशन अल्टरनेटिंग विद हाइपोमेनिया। So the question is, what is depression? Again, I need responses from your side. Write down in the chat box that what is the depression. आपको क्या लगता है डिप्रेशन क्या है? ये भी बड़ा कॉमनली हम यूज करते हैं ना कि यार मुझे डिप्रेशन हो रही है, आप डिप्रेस्ड लग रहे हो। तो ये जो आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिप्रेशन, इसका क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? डिप्रेशन क्या है जी? ओके, डॉक्टर महानूर कह रही हैं टेंशन, ओके, या फिर वो कहती हैं स्ट्रेस, ओके। और कुछ भाई? टेंशन और स्ट्रेस हम कल डिस्कस कर चुके थे। ये दोनों वर्ड जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के हैं, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आते हैं ये टेंशन, वरी या एप्रीहेंशन और स्ट्रेस जी। मेंटल इलनेस कह रही हैं, ओके। डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड और सैडनेस, ओके। फीलिंग ऑफ सैडनेस, गुड। इट इज अ मूड डिसऑर्डर इज फीलिंग ऑफ सैडनेस, लॉस और एंगर। देखिए एंगर फिर से यहाँ नहीं आएगा, एंगर हम डिस्कस कर चुके हैं कल एंजाइटी डिसऑर्डर में। सैडनेस और लोनलीनेस, ओके गुड। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, आयशा ताहिर कहती हैं सही। हिरा फजल, केमिकल इम्बैलेंस लीडिंग टू फीलिंग ऑफ सैडनेस और वर्थलेसनेस, वेरी गुड। इलनेस दैट नेगेटिवली इफेक्ट्स योर मूड, ओके। नवाज शेख कहते हैं, लेकिन ठीक है, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो आपने भी मुझे बताई हैं ये डिप्रेशन के फीचर्स हैं, इट्स सेल्फ डिप्रेशन नहीं है। इट्स सेल्फ डिप्रेशन क्या है ये हम आज देखेंगे। अगर डिप्रेशन को हमें डिफाइन करना है तो डिप्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सैड मूड, पॉवर्टी ऑफ द स्पीच, या आप इसे कह सकते हैं कि डिस्टर्ब्ड स्पीच, या अगर सेकंड में चलें तो फिर लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड आइडियाज। तो 4 फैक्टर्स हैं इसमें, मूड,
speech, energy or idea. So depression is characterized by the disturbed mood, disturbed or poverty of speech, loss of the energy, and the disturbed or the loss of the thoughts or ideas. मेनिया को अगर आप देखें, मेनिया को भी इन 4 पैरामीटर्स में रखते हैं. किसमें? मूड, स्पीच, एनर्जी और आइडिया. तो मेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय इलेटेड, इरिटेबल, ठीक है, और यूफोरिक मोड with pressured or the fast speech, excessive energy or excessive activity or overactivity, and the fourth is flight of ideas with disinhibition. So mania is characterized by the elated, irritable or euphoric mode with a fast and pressured speech, the overactivity with the disinhibition and flight of ideas. Flight of ideas क्या है वो हम आगे चल के समझते हैं. आपने ये वर्ड भी इस्तेमाल किया होगा, यूफोरिक हो तुम, तो यूफोरिक होने का मतलब हैप्पी होना नहीं होता, इलेटेड मोड में चला जाना. क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता आज इसके फीचर्स देखेंगे और इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे हम. अब एक और वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर 2 में कि डिप्रेशन अल्टरनेटिंग विद हाइपोमेनिया है. अब ये हाइपोमेनिया क्या है? हाइपोमेनिया इज बेसिकली अ टाइप ऑफ द मेनिया व्हिच इज शॉर्ट इन ड्यूरेशन, ब्रीफ इन ड्यूरेशन, with less symptoms or less severity of symptoms and absence of the psychotic features. हाइपोमेनिया मेनिया का ही टाइप है, लेकिन हाइपोमेनिया क्या होगा, उसका ड्यूरेशन बड़ा शॉर्ट है, ब्रीफ है, सिम्टम्स लेस सीवियर है उसमें, और इसमें कोई भी साइकोटिक फीचर्स नहीं आते. अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं. What is psychosis or what are the features of psychosis? कौन से थे साइकोसिस के फीचर्स? मैंने आपको बताए थे कि 5 फीचर्स होते हैं जब हम किसी मरीज को या किसी पर्सन को जो आपकी ओपीडी विजिट कर रहा है लेबल करते हैं साइकोसिस. और वो कौन से 5 फीचर्स हैं? जल्दी से बताइए भाई, आपको याद है तो. अगर मैं नॉमिनेट करूंगा थोड़ा सा बुरा लगेगा कि मैं किससे सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा ताकि मुझे ये मालूम हो कि आप सब इस वक्त मेरे साथ हैं. चलें जी, नैना कुमारी हैं 45. कैन यू टेल अस व्हाट इज साइकोसिस और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइकोसिस? अगर आपको जवाब नहीं पता आप सॉरी टाइप कर सकती हैं, आप अपने माइक को अनम्यूट करके जवाब दे सकती हैं. ये डॉक्टर माहिनूर जी, अगर आप लोग इस वक्त मेरे साथ हैं तो ये चीजें आपको टाइप करनी है, आपकी अटेंडेंस के ऊपर बुरे असर पड़ेंगे इसके भाई. चलें जी, स्पीच डिसरप्शन साइकोसिस, माहिनूर की तरफ से सॉरी है. चलें जी, साइकोसिस को मैं जल्दी से रिमाइंडर दे दूं भाई. जी हाँ, नवाज शेख ने कहा हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, वेरी गुड. Actually hallucination, delusion, disorganized speech, disorganized motor behavior, very good. जी जी बिल्कुल सही कहा है इन्होंने. नैना कुमारी अब जवाब दे रही है हमें कि इनअप्रोप्रिएट परसेप्शन ऑफ एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट. सॉरी नैना, ये नहीं था. ये बेसिकली साइकोसिस के 5 फीचर्स हैं जो इन्होंने क्लियर किए हैं अभी, कि हेल्यूसिनेशंस, डिल्यूजन्स, disorganized speech, disorganized gross और motor behavior. अगर ये 4 से 5 फीचर किसी पेशेंट में हैं तो हम उनको लेबल करते हैं साइकोसिस. तो हाइपोमेनिया में ये साइकोसिस के फीचर्स नहीं होंगे. गॉट इट? तो क्लासिफिकेशन विद डेफिनेशन क्लियर है. एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी.
Now coming to the clinical features of bipolar affective disorder. जैसे मैंने पहले बताया था इसके दो फेज हैं। दो फेज क्या है, इसमें डिप्रेशन का एपिसोड आएगा, फिर मेनिया का एपिसोड आएगा। एक ही मरीज में दो मोड डिसऑर्डर चल रहे होते हैं, लेकिन कैसे चल रहे होते हैं, एपिसोडिक चल रहे हैं या फेजेस के साथ चल रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि डिप्रेशन के हवाले से अगर मैं करूं, मेनिया को हम हाइड कर दें एक साइड पे, तो डिप्रेशन में क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, सेड मोड, fatigability, okay, let me take the marker, तो यहाँ हमें फटीग, ठीक है जी, फटीगेबिलिटी, एनहीडोनिया की तरफ अगर हम जाना चाहें तो ये होता है कि लॉस ऑफ द इंटरेस्ट और लॉस ऑफ प्लेजर, जो आप लोग मुझे पहले भी उसमें पॉइंट आउट कर चुके हैं जब हमने डिस्कशन स्टार्ट किया है। Decreased or increased appetite, decreased or increased sleep, decreased libido or sexual desire, low self-esteem, excessive inappropriate guilt, hopelessness, helplessness, suicidal ideation or agitation। आजकल ये बड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे भी और हमारी टीवी मीडिया पे भी, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के हवाले से कि वो डिप्रेशन में थे। तो हमें ये असेस करना चाहिए कि डिप्रेशन के कौन कौन से फीचर और क्यों होती है डिप्रेशन। जब किसी के पास सब कुछ हो फिर भी वो डिप्रेस्ड है। इसमें से जो शुरू वाले फीचर्स हैं, सैड मूड, फटीग, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और एनहीडोनिया, ये जो तीन फीचर्स हैं, ये इसको हम कह सकते हैं अगर बहुत सारे एब्सोल्यूट फीचर, यानी इन फीचर का होना जरूरी है तब हम कहते हैं ये डिप्रेशन है। बाकी जितने भी मैंने आपको बताया वो है रिलेटिव। डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड एपेटाइट, जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन होगी तो भूख कम होगी, ज्यादा भी हो जाती है। डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड स्लीप, नींद कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। डिक्रीज्ड लिबिडो है, सेक्सुअल डिजायर कम है। लो सेल्फ एस्टीम पे आए तो सेल्फ एस्टीम हम कैसे कहते हैं, जब आप खुद की इज्जत करते हैं, आप खुद को कुछ समझते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, तो इनका जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत कम है। अगर आप इनसे कुछ भी कहेंगे तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो होगा। किसी भी काम का कहेंगे बोलेंगे ये तो हम कर ही नहीं सकते। अगर आप इनसे कहेंगे कि भाई आपने ये टॉपिक पढ़ के कंप्लीट करना है, वो पहले ही विथड्रॉ कर देंगे, बोलेंगे ये मेरे बस की बात ही नहीं है, मुझे ये इंग्लिश समझ में ही नहीं आएगी। इंटरनली वो खुद को सब लोगों से कमतर महसूस कर रहे होते हैं। एक्सेसिव गिल्ट, जैसे कि अमूमन ऐसा होता है कि हम अगर अपने दोस्त से लड़ाई कर लें तो पछतावा होता है कि यार हाँ गलती मेरी भी थी और मैंने उसको सुधारने की बजाय लड़ाई करी। लेकिन इन लोगों की गलती नहीं होगी, उसके बावजूद ये गिल्ट का शिकार होंगे। इतनी हद तक गिल्ट होगी, अगर ये पेन कहीं रखेंगे और पेन वहां से गिर के टूट जाएगा तो भी इनको गिल्ट होगा कि ये मेरी गलती है, मैंने इस पेन को संभाल के नहीं रखा, जब ये गिरी तो ये टूट गई। ये पेन गिरने से और उसके टूटने से इतना शदीद गिल्ट होता है। इस तरीके से काफी ऐसे माइनर एग्जाम्पल्स हैं जिनमें गिल्ट की अगर जरूरत भी नहीं होगी तो भी इनको गिल्ट होगा। होपलेसनेस, नाउमीदी होगी। हेल्पलेसनेस, इनको लगेगा कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सुसाइडल आइडिएशन होंगे, अपनी जिंदगी को खत्म करने का आइडियाज इनके जहन में बार बार आते रहेंगे और किसी एक दिन जाकर ये कामयाब भी हो सकते हैं। एजिटेशन होगी, गुस्सा बहुत होगा इनमें। तो ये हो गया इसका एक फेज और एक एपिसोड। और कुछ दिनों के बाद ऐसे ही मरीजों में
एक और एपिसोड आता है जिसको हम कहते हैं मेनिया। अब जब मैनिक एपिसोड होगा तो सारे फीचर्स क्या होंगे इनके, वो चेंज हो जाएंगे। चेंज कैसे होंगे भाई, इलेटेड, इरिटेबल और यूफोरिक मोड आ जाएगा इनका। अब इलेटेड मोड क्या होगा, वैसे तो देखिए नॉर्मल मोड में आप खुशी में खुश होते हैं, लेकिन ये तो खुशी में भी खुश हैं, गम में भी खुश हैं। ऐसा मोड है जो परसिस्टेंट चल रहा है, हर वक्त ये खुश हैं, चिढ़ते रहते हैं दूसरों से, और ऐसी बातों पे भी खुश हैं जहां इन्हें खुश नहीं होना, क्योंकि इनकी इंटरनल जो फीलिंग है वो बहुत स्ट्रांग है खुशी के लिए। फास्ट एंड प्रेशर्ड स्पीच, जब बात करेंगे तो उनकी बात में गुरूर छलकना जिसे हम कहते हैं, आम जबान में इनकी बातों से जो है गुरूर छलकता है, तो वो होते हैं मैनिक। फास्ट एंड प्रेशर्ड स्पीच, उनके बात करने का अंदाज, उनका टोन इतना वो असर रखेगा सामने वाले पे, इतनी जोर से बात करेंगे और उनकी बात करने के रवैये में उनका गुरूर नजर आएगा, तो बहुत ज्यादा फास्ट होंगे, बहुत प्रेशर्ड स्पीच होगी। ओवर एक्टिविटी, तो ओवर एक्टिविटी हम किसे कह रहे हैं कि ये जो हैं अगर इनको कोई भी काम करने का कहेंगे ना तो ये सारे काम खुशी खुशी कर लेंगे। अगर इनको यहाँ तक कि आप कहेंगे कि 10वें माले से जंप लगानी है, ये कहेंगे कोई मसला ही नहीं है, यहाँ से तो हम लगा ही सकते हैं। अगर आप इनको कहेंगे कि नहीं ये 10वें माले पे या आपने पैकेट ऊपर छोड़ के आना 2 दफा, ये कहेंगे ठीक है भाई ये तो मैं छोड़ दूंगा, ये तो मेरे लिए मसला ही नहीं है। तो इतने ओवर एक्टिव होंगे, बिल्कुल थकेंगे नहीं। वहां फटीगनेस थी, यहाँ ओवर एक्टिविटी है। डिसइनहिबिटेड बिहेवियर, डिसइनहिबिटेड बिहेवियर क्या है, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्पेंडिंग एंड इंक्रीज्ड सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर ये शराब पीना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा पिएंगे, बहुत ज्यादा सब्सटेंस अब्यूज में चले जाएंगे। खर्च करना है पैसा, भले घर में पैसा ना हो, बहुत ज्यादा खर्च करेंगे, बहुत ज्यादा शॉपिंग करने चले जाएंगे। और अमूमन ये जो थोड़ी सी डिसइनहिबिटेड बिहेवियर है शॉपिंग के हवाले से खवातीन में बड़ा कॉमन है। इंक्रीज सेक्सुअल एक्टिविटी होगी, वहां लॉस ऑफ लिबिडो था, यहाँ सेक्सुअल एक्टिविटी ज्यादा है। कभी कभी इन मसलों की वजह से ये क्राइम भी कर लेते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज होंगे, इनके ग्रैंड्योर एंड परसिक्यूटरी टाइप्स। ये 2 टर्म मैंने बीपीएल में आपको समझाए थे। अब देखिए ग्रैंड्योर आइडियाज क्या है कि खुद को कुछ समझना कि भाई मेरे सिवा ये दुनिया चल ही नहीं सकती, अगर ये दुनिया चल रही है तो मेरी वजह से, अगर इन लोगों को खाना मिल रहा है तो वो मेरी वजह से है, यहाँ पे अगर बेस्ट फिजिशियन कोई इस तरह में है तो वो मैं हूँ, मेरे अलावा मेडिसिन तो किसी को आती ही नहीं। परसिक्यूटरी थॉट्स ये होंगे कि हाँ ये जो सारे लोग खड़े ये मेरे दुश्मन हैं, मैं खुद एक हूँ जो अपने साथ अपना इंसाफ कर सकता है, बाकी सब मेरे दुश्मन हैं, मेरे खिलाफ हैं, मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं। इस टाइप के आइडियाज उसके जहन में चलते रहते हैं। और एक एग्जांपल दूंगा, मैंने साइकियाट्री रोटेशन में देखा था एक मैनिक पेशेंट, मुझे पता नहीं था कि वो मैनिक है। मैं वहां पे जस्ट हिस्ट्री लेने के लिए गया साइकियाट्रिक इमरजेंसी में, मैंने कहा कि जनाब आपका नाम क्या है। उसका जो रिस्पॉन्स आया, पहले तो मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराया, उठ के खड़ा हुआ, तो मैं थोड़ा पीछे हो गया। मैंने कहा अब ये कुछ होने वाला है ना। मैं पीछे होते हुए मैंने ग्रिल बंद करवा दी, लेकिन वो ग्रिल के वहां पे खड़ा होके ग्रिल को पकड़ के उसने बोला मेरा नाम भाई मोहम्मद अली भी है, फलाना भी है, फलाना भी है, ढिमकाना भी है। उसने अपने 10 नाम बता दिए और इतने जोर जोर से वो अपने नाम ले रहा था, ये समझ नहीं आई कि इसके साथ क्या है, क्योंकि मुझे उस वक्त मैनिया का आइडिया नहीं था कि ये मैनिक पेशेंट इस वक्त इमरजेंसी में है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कोई उसको कहीं बैठा के ग्रिल खोल दी, वो ओपीडी में मेरे पास आ गया और 10 नाम उसने अपने बताए। बोले मैं अब बता रहा हूँ, अब तो मेरे सामने ये सारे नाम लिखोगे। ठीक है जी, नाम लिखेंगे। हमने उसे बिठा दिया, उससे बातें करना शुरू की। मेरे प्रोफेसर मेरे साथ थे, मोइन अंसारी साहब, तो उन्होंने एक अजीब सी बात की, मैं जो हूँ वह नबी बन चुका हूँ रात को, और मेरे ऊपर नबुवत नाज़िल हो चुकी है,
रात को मैं गया था और दुनिया का जो ये पूरा आपका ग्लोब है इसका मुआयना करके आ गया हूँ। इसके ऊपर शैतानी ताकतें अब हुकूमत करने वाली हैं। अब आज रात को फिर मैं जाऊंगा और आपकी इस दुनिया को मुझे बचाना है। ये अल्लाह ने मुझे जो है हुक्म दिया है, मेरे कानों में अल्लाह की तरफ से आवाज आई है कि इस दुनिया को सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। तो ये फ्लाइट ऑफ आइडियाज थे उसके। एक और था, जिन जो आए थे इमरजेंसी में एडमिट, उनको ये था कि जो उसके घर वाले हैं वो उन्हें जहर देकर मारना चाहते हैं ताकि उनकी जायदाद पे कब्जा कर सके। देखिए ये सिचुएशंस हमने बहुत देखी हैं, बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन ये परसिक्यूटरी हो चुके थे। हमें भी पहले लग रहा था कि वाकई में ऐसा ना हो, लेकिन जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो परसिक्यूटरी थॉट्स में थे, वो मैनिक थे, खर्चा भी बहुत ज्यादा करते थे, रेड मार्केट में काफी उनके अफेयर थे, इसलिए एक दो दफा वो जेल भी जा चुके थे। इसी तरीके से एक और मिला क्या कि भाई आपकी मदर की डेथ के बाद वो कहता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं ऐसा हो गया हूँ। क्या हुआ था आपकी मदर को? बोले मैं एक दफा टीवी देख रहा था, टीवी पे हमने कोई इंडियन चैनल चल रहे थे, हमने घर पे नया डिश लिया हुआ था, डिश से एक जो है तीर निकला, एक बिजली निकली, तीर जो आके मुझे लगा और बिजली सीधी मेरी माँ के दिल में जाकर लग गई, हार्ट अटैक हो गया। वो हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल में मैंने उनका ऑपरेशन किया और वो फिर वहां पे जो बिल्कुल ठीक होकर घर आ गई थी, लेकिन मेरे घर वालों ने उसे मार दिया। क्यों? क्योंकि मैंने ऑपरेशन करके उसे ठीक किया था। अब फ्लाइट ऑफ आइडियाज देखें उन्होंने कहाँ से ली थी, कहाँ वो टीवी पे बैठा हुआ था, कहाँ इंडियन चैनल्स की बात चल रही है, कहाँ डिश की बात हो रही है, कौन सी लाइटनिंग हुई है, वो एक अलग इशू है, तीर चलना एक अलग इशू है, कार्डियक सर्जरी एक अलग इशू है, फिर वो परसिक्यूटरी हो गया। तो ये मैनिक पेशेंट की डिफरेंट प्रेजेंटेशन है आपके पास। इनकी मेमोरी इम्पेयर्ड होगी, यानी कि आज जो काम किया है सुबह को अगर आप पूछेंगे तो उनको याद ही नहीं होगा। इंसोम्निया होगा, नींद बहुत कम करेंगे क्योंकि ये ओवर एक्टिव होते हैं। भूख इनको कम लगेगी, डिक्रीज एपेटाइट है, वेट लॉस होगा और ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस होंगे। इनको कानों में आवाजें आती रहेंगी, जैसे उस मरीज को आ रही थी अल्लाह की आवाज आई है, मैंने तुम्हारे ऊपर नब्वत नाजिल कर दी। तो ये सारे फीचर जो होंगे वो उस मरीज में मैनिक एपिसोड के दौरान मिलेंगे। We are running short of time. I will share the next ID soon. जब तक ये मीटिंग चल रही है हम इसे कंटिन्यू रखते हैं। चलें जी, any question? Any question from your side regarding the clinical features or the different episodes of bipolar affective disorder? No one? Okay. चलते हैं भाई। ये एक पिक्चर है जो बिल्कुल आपको क्लियर समझाएगी कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक ही आदमी में किस तरीके से होता है। अगर वो डिप्रेसिव फेज में जब जा रहा है तो आप उसका मोड देख लें, ठीक है, और जब वो मैनिक फेज में आ रहा है तो उसका मोड आप देख रहे हैं। डिप्रेसिव फेज में वही चीजें सारी हो रही हैं, प्रीवियस मैनिक एपिसोड था। A feeling of worthlessness or guilt है, hopelessness, anger and irritability, decreased interest or pleasure, negative views, fatigue, decreased energy, decreased appetite, constipation, insomnia, libido, suicidal preoccupation, may be agitated or have the movement retardation। यानी कि वो अगर कहीं बैठा हुआ होगा ना तो कहेगा आप यहाँ से मुझे कोई उठा के खुद ही ले जाए। अगर खाना खाना होगा तो कहेगा नहीं अब ये कर दे, खाना तो सामने पड़ा है लेकिन कोई चम्मच से इसको उठा के मेरे मुंह तक रख दे, और अगर हो सके तो मेरी जबान भी वही हिलाए, मैं तो नहीं हिलाने वाला। तो ये डिप्रेसिव जो है वो फीचर्स है। अगर वही बंदा अगर मैनिक फेज में आएगा तो क्या होगा, मोड उसका एलेटेड हो जाएगा, एक्सपेंसिव इरिटेबल होगा, स्पीच लाउड रैपिड, पिनिंग, पुअर जजमेंट, क्लैंगिंग, वल्गर होगा बिल्कुल उसका लुक, वेट लॉस होगा, ग्रैंडियोर डिल्यूजन्स होंगी,
distracted with hyperactivity, decreased need for sleep, inappropriate dressing होगी, जैसे ये देख रहे हैं आप, कोई फीमेल की चप्पल पहनी हुई इन्होंने, ट्राउजर भी डिफरेंट है और शर्ट बड़ी फ्लावर्स की साथ, आई थिंक ये होगा कि अजीब ही लुक है, कानों में बाली भी डाल दी इसने, क्योंकि इतना ओवर एक्टिव हो गया, ये समझता है अगर मैं जैसा दिख रहा हूँ मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, और फ्लाइट ऑफ आइडियाज होंगे इसके। खैर, तो ये पिक्चर आपको क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करती है बाइपोलर डिसऑर्डर्स की तरफ। नेक्स्ट अब आ जाते हैं कि इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं। देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर अपने क्लिनिकल फीचर से ही डायग्नोस होते हैं, इनमें पर्टिकुलरली कोई भी टेस्ट हम नहीं करवाते, सिर्फ क्लिनिकल फीचर्स पे ये डायग्नोस होते हैं। ट्रीटमेंट पे अगर हम आ जाएं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स की, तो 2 फेजेस हैं, हमने पढ़े ना। अगर मरीज में जो फेज चल रहा होगा, जो प्रीडोमिनेंट फेज होगा, आप उसको ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि डिप्रेशन और मेनिया दोनों की ड्रग साथ चलाएंगे, अगर चलाएंगे तो वो इम्बैलेंस करेगा। ये दो ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, as I already told, we will treat the predominant episode of the disorder. अगर डिप्रेसिव फेज है तो we will treat only the depressive phase, the depression. अगर मैनिक फेज है तो आप मेनिया को ट्रीट करेंगे। तो डिप्रेसिव फेज की ट्रीटमेंट क्या होगी अगर हम यहाँ देखें, फार्माकोथेरेपी, साइकोथेरेपी, सोशल ट्रीटमेंट and ECT, electroconvulsive therapy. फार्माकोथेरेपी में एंटी डिप्रेशन ड्रग्स आते हैं। एक और फ्लैशबैक लेते हैं फार्माकोलॉजी की तरफ, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स की तरफ। बहुत सारी आपने पढ़ी थी, किसी को वो एग्जैक्टली याद है वो वाली ड्रग्स कौन कौन से ग्रुप्स थे हमारे पास? कॉमनली तो हम यूज करें SSRIs, है ना, जो मैं लास्ट 3 लेक्चर से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जी, बिल्कुल SSRIs, ओके ओके, ASSRIs, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। ये SSRIs हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसमें 2 नाम मैं आपको कॉन्स्टेंटली याद करवाता आ रहा हूँ, फ्लूक्सिटीन एंड Escitalopram। तो और रेस्पॉन्सेस हैं हमारे पास जी, सही है। नेक्स्ट जो है दूसरे जो हम रखते हैं SSRI के अलावा जो रखते हैं वो कौन से होते हैं, जो मैंने आपको याद अभी करवाए थे, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी हमने आपको क्लियर करवाए थे। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में कौन से थे, एमिट्रिप्टाइलिन और क्लोमिप्रामीन मैंने आपको याद करवाए थे जी। और कौन से इसके अलावा, गुड, फ्लूक्सिटीन, एसिटालोप्राम, गुलशन कुमार। नेक्स्ट और कौन से थे ड्रग्स इसके अलावा भी? कुछ, एक सेरोटोनिन है, एक नॉन सेरोटोनिन है। तो नॉन सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स भी हैं, जिसमें डिलॉक्सिन और वेनालाफेक्सिन थे। उसके अलावा हमने कौन से रखे थे, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, जिसमें फेनालाजीन है। उसके अलावा अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट थे या एंटी साइकोटिक्स का रोल था, उसमें मिराटाजेपिन और ब्यूप्रोपियोन थे। तो इनको आप असेंबल कर लें। यूजुअली जो प्रैक्टिस में आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं वो वही है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसमें फ्लूक्सिटीन और एसिटालोप्राम, नॉन सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में ड्यूलॉक्सिन है और वेनालाफेक्सिन। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स में एमिट्रिप्टाइलिन एंड क्लोमिप्रामीन हम कर रहे हैं यूज। उसके अलावा जो है वो है जो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स हैं
उसमें ये ब्यूप्रोपियोन और मिराटाजेपिन है। एक और रहता है ग्रुप आपका मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स का, जिसमें फिनालाजीन है। तो ये फार्माकोथेरेपी में आपने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स और उनके नाम और उसमें कॉमन ड्रग्स सिर्फ याद रखनी है। साइकोथेरेपीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपीज हैं, लेकिन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या सीबीटी का बेहतर रोल है डिप्रेशन में। सोशल ट्रीटमेंट पे अगर हम आ रहे हैं तो आप देखते हैं यूजुअली ये होता है इसमें पर्सनल सपोर्ट, इनके फैमिली सपोर्ट और शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट, इनके एम्प्लॉयमेंट को मॉनिटर किया जाए जहां ये काम कर रहे हैं। लास्ट में इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी। ये ईसीटी एक मेथड है जिससे बंदे को आपको, जिसमें ज्यादातर सुसाइडल आइडिएशन है, उसको हम कहते हैं मेजर डिप्रेशन खैर या सीवियर डिप्रेशन। ये एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है डिप्रेशन की, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की डिटेल में हम नहीं जा रहे, लेकिन जिस बंदे में सुसाइडल आइडिएशन हो, जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आपकी फार्माकोथेरेपी और साइकोथेरेपी को, और आपको लग रहा है कि सुसाइडल आइडिएशन बहुत ज्यादा हाई है और अपकमिंग ये वाकई में सुसाइड की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए ईसीटी को हम प्रेफरेबल समझते हैं। अब जब मैनिक फेज आएगा तो मैनिक फेज में फार्माकोथेरेपी यूजुअली यूज होती है और ईसीटी। फार्माकोथेरेपी में जो दो ड्रग इस्तेमाल हो रही हैं वो हैं लिथियम एंड मोड स्टेबलाइजर ड्रग। लिथियम साल्ट्स यूजुअली इस्तेमाल किसमें हो रहे हैं? मेनिया में। मोड स्टेबलाइजर ड्रग्स हैं एंटी एपिलेप्टिक्स और एंटी साइकोटिक्स। एंटी एपिलेप्टिक्स में कॉमनली सोडियम वेल्पोरेट या कार्बामेज़ेपिन या लेमोट्रिगिन, ये 3 ऐसी ड्रग्स हैं जो मूड को स्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि देखें इसमें हाईली एलेटेड मोड है, हमें इस मोड को नीचे ले आना है। एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स ये हम जब ऐड करते हैं जब वो मैनिक पेशेंट में साइकोसिस के फीचर्स हों, और एंटी साइकोटिक्स में चॉइस होती है एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स की। एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स कौन से हैं? राइस्पेरिडोन, ओलेंजापिन एंड क्यूटियापिन। अब बात यह है कि हम अटिपिकल एंटी साइकोटिक क्यों चूज कर रहे हैं, टिपिकल एंटी साइकोटिक क्यों नहीं कर रहे। ये मैंने शिज़ोफ्रेनिया के लेक्चर में आपको क्लियर किया था कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स का रिस्क ज्यादा है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम का रिस्क ज्यादा है, जबकि अटिपिकल में ऐसा रिस्क कम है। क्लियर है? थर्ड इज इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। थोड़ी देर पहले जिस मरीज का मैंने मिसाल आपसे शेयर किया था, जो अपने 10 नाम बताया, गिरिल खुलने के बाद दोबारा मेरे पास ओपीडी में फिर 10 और नाम बताए हैं, जो नबी बनने वाला था, तो ऐसे मरीजों के लिए ईसीटी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब वो ओवर एक्टिव हो चुका है, उसे नींद की जरूरत नहीं थी, वो एक क्राइम के फेज में एंटर हो चुका था ड्यू टू इंक्रीज्ड सेक्सुअल एक्टिविटी, ओवर स्पेंडिंग एंड ओवर ड्रिंकिंग। तो वहां ईसीटी को ये चॉइस पे लिया जा सकता है। अगर आपको इंडिकेशन भी नहीं पता है कोई इशू नहीं है, जस्ट आपको ऑप्शन पता हो, आपको ट्रीटमेंट आउटलाइन पता हो कि आपके पास क्या क्या उस मरीज में आप कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। ठीक है जी, ये होगी ट्रीटमेंट आउटलाइन। नाउ वी आर मूविंग टू एंडिंग दिस सेशन। अगेन वन पिक्चर, एक तरफ ये पूरा हरा भरा है और यहाँ पे ये वीरान है। ये कलरफुल है तो ये डार्कनेस में ब्लैक एंड व्हाइट है, तो ये डिप्रेसिव फेज है और ये इसका मैनिक फेज है। Any question from your side except the depression and definition of depression and mania? Okay, ECT. Okay, so first of all, let me clear the question of Hira regarding the definition of the depression and the definition of mania. देखिए 4 पैरामीटर्स को आपने सोचना है।
चार कौन से पैरामीटर थे? मोड, स्पीच, एनर्जी और आइडियाज। ठीक है। Now depression is characterized by the depressed or sad or disturbed mood, disturbed speech. Third one is the loss of energy and loss of ideas. Mania is characterized by the elated, irritable or euphoric mood, fast and pressured speech, overactivity with disinhibition, and last flight of ideas. क्लियर है? एंड इसी से ही अगर आपको सवाल मिल जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिप्रेशन एंड मेनिया, तो आप ये चार डिफरेंस लिख सकते हैं: मोड, स्पीच, आपकी एनर्जी और आइडियाज की बेसिस पे। अब कहते हैं ईसीटी कहा था आपने, ईसीजी कहा था या ईईजी कहा था? नहीं, ईसीटी है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, और इसी को आप आम जबान में शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं। बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में आपने कॉमनली ये चीज़ें देखी होंगी कि जो भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये शॉक थेरेपी दी जाती है, लेकिन ये शॉक थेरेपी नहीं है। आप डॉक्टर्स को प्रॉपरली इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी के नाम से जानेंगे। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी पे पूरा एक लेक्चर है, लेकिन वो आपके कोर्स सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। जी, एनी क्वेश्चन? चलें जी, ये कह रहे हैं कि ताइबा शाहिद कह रही हैं सर व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ ईच फेज। ठीक है, देयर इज नो एनी एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ एनी फेज। ये जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन जो होगी वो 15 दिन चलेगी, फिर मेनिया 15 दिन चलेगा, ऐसा नहीं होगा। देयर वुड बी नो एनी एग्जैक्ट ड्यूरेशन। ये जो फेजेस हैं किसी में बहुत प्रोलॉन्ग चल रहे होते हैं, किसी में ये बड़े ब्रीफ फेजेस होते हैं। यहाँ तक कि हमारी फैकल्टी में एक है ऐसे पर्सन जिसमें ये फेजेस बड़े रैपिडली आते हैं और डे टू डे बेसिस पे चेंज हो रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है ये ड्यूरेशन जो है वो नहीं, लेकिन काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए भी ये चल सकते हैं। Jelvina, let me find you. Who raises the hand? Kindly again raise your hand. Again raise your hand. Yes. Ji, unmute your mic and you can tell me. Now you can unmute and you can ask the questions as well. Yes, I'm not hearing your voice. I put the security on unmute. You all can unmute your mic and can ask the questions. Gulshan Kumari ka ek aur sir, can both phases overlap? Yes, sometime, but not regularly. The both phases are very different. ये जो पिक्चर आपको दिखाई थी हमने इसीलिए दिखाई थी ताकि आपको ये क्लेरिफाई हो जाए कि दोनों फेजेस एक साथ नहीं चल सकते। दोनों फेजेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों के फीचर्स आपस में ओवरलैप नहीं करते। ये फेजेस एक दूसरे के साथ अल्टरनेट चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी क्लियर किया था। माहिनूर कहते हैं हाउ डू द फेजेस इंटरचेंज, R2 आर एनी स्टिमुलेंट। यहाँ देखें इटियोलॉजी हमने पढ़ी थी कि ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स पीछे हो चुके हैं, जैसे किसी के अंदर हमने कहा था कि सेरोटोनिन इंक्रीज हो रहा है, किसी के अंदर जो है वो जेनेटिकली जो उनकी इनहेरिटेंस है, तो उसके अलावा और कोई स्टिमुलेशन नहीं है इनका।
ये बाइपोलर डिसऑर्डर्स के जो फेजेस हैं वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं। ये यूजुअली तो इडियोपैथिक इटियोलॉजी है, रिस्क फैक्टर के हवाले से ये अपने हिसाब से इंटरचेंज होते रहते हैं। इनको किसी खास स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती या कोई ऐसा नहीं होता। जी हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, फिर भी मैं आपके साथ हूँ, आपके क्वेश्चंस को और आपकी क्वेरीज को क्लियर करेंगे। थैंक यू एंड वी विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर द लेक्चर।